میں یہ سر جاننا چاہتا ہوں کہ حقیقت کا ادراک ہم کس طرح کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہم ہوں، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، چاہے وہ کوئی فلاسفر ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو۔ لیکن میرا ایمان فی الحال یہ ہے کہ سائنس اس کائنات کی وضاحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، اور وہ پریکٹیکل ہے اور وہ چیلنجیبل ہے۔ وہ پوری کائنات کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی تھیوری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس سے بہتر لا سکتے ہیں، تو ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے، اور اس کے چیلنج موجود ہے۔ حالانکہ اسلام کا، کسی مذہب کا، اس کو آج چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس میں جو کہہ دیا گیا وہ کہہ دیا گیا، جو آسمانی کتابوں میں لکھ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اس کائنات کی وضاحت کا پھر بھی بہت قریب ترین ذریعہ ہے۔ آج یہاں ہوتے ہیں، ہمیں 4 دن بعد کا بتا دیا جاتا ہے کہ ادھر اتنی انچ سنو فال پڑے گی، اور وہ پڑتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں۔ ہم آج سے 100 سال بعد کا بتا سکتے ہیں کہ سورج کس ٹائم غروب ہوگا، کس ٹائم نکلے گا۔ تو جی یہ ایک فی الحال تک ہمارے موجودہ علم ہے، اس پہ بھی مکمل طور پہ بلیو نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا کوئی تکا لگ گیا ہو، جو ہم نے یہ قوانین بھی وضع کر لیے ہیں۔ ابھی کسی اور کریچر نے جو انٹیلیجنٹ ہو آ کے ابھی تک ہمارے یہ قانون بھی نہیں ویریفائی کیے۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بھی نہیں کسی نے ویریفائی کیا، بگ بینگ کو بھی نہیں کسی نے ویریفائی کیا، کوانٹم فزکس کو بھی نہیں کسی نے ویریفائی کیا۔ یہ ہمارا ایک علم ہے، کیونکہ ہم صرف کانشیس ہیں ابھی تک اس کائنات میں، اس لیول کی کہ ہم اس کائنات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت گہرا راز ہے کہ ہم موجود ہوتے لیکن ہم اس کائنات کو نہ سمجھ سکتے، لیکن ہم اس کائنات کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے میرے نزدیک۔ لیکن ہم کیسے سمجھتے ہیں، اب اس کے کافی پیرامیٹر ہیں۔ جس طرح آئنسٹائن نے کہا تھا کہ the most incomprehensible thing about this universe is that it is so comprehensible for human conscious and human mind۔ بٹ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سر، میں اگر آسمانی کتابوں پہ یا اس پہ آؤں گا تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان کا ادراک، اس کی پرسیپشن، اس کے قوانین کو جاننے کی طاقت سب محدود ہے۔ اگر ہم کائنات کی عجز کی بات کریں، یا ہم کہیں کہ کوئی ہمیں آواز آتی ہے یا کوئی مخلوق آتی ہے جو غیر مرئی ہے، بالکل غیر سپر نیچرل ہے، ایکسٹرا آرڈنری ڈائمینشن سے تعلق رکھتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری ٹیرسٹریل ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خدا ہے، تو ہم اس چیز کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے پرسیپشن کی بیس پہ، جہاں کہ ہم آج جانتے ہیں کوانٹم فزکس میں everything is objective, there is nothing subjective, right؟ سو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم اس کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا آبزرور ہے۔ اگر آپ آبزرور کو نکال دیں تو شاید یہ کائنات بھی نہ ہو۔ تو اسی طرح ہے کوانٹم فزکس میں، آپ الیکٹران کو دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں سر، آپ ان سے نظر اٹھاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ انرجی بن جاتے ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ہم آج تک اپنی نہیں جا کے کائنات کی ایجز آف یونیورس پہ بیٹھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کائنات سے آگے کوئی کائنات نہیں ہے، یا اس علم سے آگے کوئی علم نہیں ہے، یا اس غیر مخلوق سے آگے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو اس چیز کی ذرا وضاحت کر دیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو کس طرح ڈٹرمائن کر سکتے ہیں تھوڑی سی۔ اور میں بتا دوں سر کہ ہماری دیکھیں ریکارڈڈ ہسٹری صرف 5000 سال کی ہے، ٹھیک ہے؟ کائنات کی ہسٹری 4.5 بلین ارتھ کی ہے، ایک 13.8 بلین ایئر ہسٹری سر اس کائنات کی ہے، جو ہبل نے دیکھی ہے۔ اور ہو سکتا ہے ہبل بھی غلط ہو، اب جیمز ویب گئی ہے، وہ دیکھیں، وہ شاید 15 بتا دے، 18 بتا دے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو کئی ہوگی۔ انفینٹی کا لفظ بھی یہاں پہ بے معنی ہے اور مایا ہے۔ تو اس کی سر وضاحت کر دیں۔ میں معذرت چاہوں گا، میں نے بہت لمبا کویسچن کر دیا۔ ایکچولی یس، بہت ہی لمبا کر دیا ہے۔ ناؤ آئی ہیو ٹو گو بیک ورڈز، جہاں سے میں کوئی چیز مس کر کے مجھے تھوڑی ہیلپ کیجیے گا۔ پہلے میں شروع کرتا ہوں جو آپ نے آخری بات جو آپ نے کہی آخر کہی کہ جو کوانٹم فزکس میں آپ نے کہا کہ سب کچھ آبجیکٹو ہے، دیٹ از ناٹ ٹرو سر۔ کوانٹم فیلڈ ہی ایکچولی آبجیکٹیوٹی کو کویسچنیبل بنا دیتی ہے، اس لیے کہ دا ویری فیکٹ کہ ہم کوانٹم ورلڈ کس طرح کا لگتا ہے ابھی ہماری یہ سمجھ نہیں ہے، اور ہر سائنسدان کی اپنا اس میں فریم ورک ہے which gives us the idea کہ یہ آبجیکٹیو نہیں ہے۔ ہاں، ایک جو گروونگ کنسنسس ہے کوانٹم سائنٹسٹ میں وہ یہ ہے کہ ریئلٹی اٹ سیلف آبجیکٹیو نہیں ہے۔ جی ایسا یعنی کہ جیسا آپ کہہ رہے تھے، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ریئلٹی جو ہے وہ سبجیکٹیو نہیں، وہ ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیو نہیں ہے ریئلٹی۔ ہاں، آبجیکٹیو نہیں۔ ہاں جی، وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر تو ہم
اسی پیرامیٹر سے دیکھیں جو ہماری ہیومن پرسیپشن ہے تو پھر تو ان کی بات ہمیں ٹھیک لگے گی. بٹ دیر آر سم سیریس پرابلمس. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جو سب ایٹامک اینٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں تو ہوتے ہیں, ادروائز نظر نہیں آتے. دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو. یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اصل میں وہ بات اس طرح سے ہے کہ اس کو سپر پوزیشن کہا جاتا ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ایک اینٹی ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود ہوتی ہے, بٹ وین وی آبزرو اٹ فرام اے پرٹیکولر ویو پوائنٹ تو اس وقت وہ ساری کی ساری مرج ہو کے ایک جگہ پہ آ جاتی ہے. That of course is not to say کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, but this is how we perceive it to be. اور وہ جو پوائنٹ پارٹیکل کی جو تھیوری ہے وہ بھی اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ تو ایک پارٹیکل تو گرد کسی صورت میں ہوتا ہے, اینڈ وی تھنک کہ دیر سم ویئر اس میں وہ ہمارے پاس وہ پارٹیکل موجود ہے, اینڈ دیر از نو گارنٹی کہ وہ وہاں پہ ہمیشہ موجود ہو. بٹ اگین میجرمنٹس ہمیں بتاتی ہیں کہ 99% آف دا ٹائمز وی آر ایکوریٹ کہ وہ اسی کے اندر کہیں پہ موجود ہوتا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس طرح سے کیوں بیہیو کرتا ہے, کہ اس کا بیہیویئر ٹوٹل ہی جو آبجیکٹیو ریالٹی ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. Now we cannot say کہ اگر آبزرور نہ ہو تو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ یہ ایک فلسافیکل ڈیوائس ہے, یہ سائنٹیفک ڈیوائس نہیں ہے, سائنٹیفک وے نہیں ہے سوچنے کا. اور اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ بلی ایک ہی وقت میں مردہ ہے کہ زندہ ہے. گریٹ ایکسپیریمنٹ ٹو ہیو. آپ کی نظر سے گزرا ہے وہ؟ ہاں, وہ والا, وہ باکس والا جو ہے, باکس والا جو ہے, ایگزیکٹلی. سو what do we say کہ وہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہو اور مردہ بھی ہو؟ The answer is no. تو ہماری سمجھ کی یہ لمیٹیشن ہے. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ویسٹرن اپروچ ہے ٹورڈ سائنس وہ لیبلز کے ساتھ چلتی ہے, کہ جو چیز سمجھ نہ آئے ویسٹرن اپروچ ٹورڈ سائنس کنسیڈ نہیں کرتی ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, بلکہ وہ اس پہ ایک لیبل لگا دیتی ہے کسی نہ کسی طرح کا. اور وہ اچھی بات ہے, بعد میں اس لیبل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. دیٹ از ہاؤ دا سائنس ورکس. تو ابھی چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے لیبل لگا دیے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. ہم نے یہ لیبل لگا دیے ہیں کہ ہم آبزرو کریں گے تو ہی ہمیں نظر نہیں آئے گی. نہیں, ہم آبزرو کریں یا نہ کریں, جو فینومینن ہے وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. میں آسٹریلیا میں نہیں ہوں, اگر وہاں بارش ہو رہی ہے تو the very fact کہ میرے آبزرو کیے بغیر وہ ہو رہی ہے, it refutes the idea کہ میں آبزرو کروں گا تو فینومینن ہوگا. اور کوانٹم فزکس چونکہ ہم اس کو بھی اپنی ہیومن پرسیپشنز کی جو لمیٹیشن ہے اس کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس لیے ہم نے it's an art of story telling, ہم نے ایک سٹوری کریٹ کی ہے کہ نہیں ہم اسے آبزرو کریں گے تو ہوگی, ادروائز وہ نہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے موجودہ دانستگی میں اور جو ہمارا موجودہ علم ہے, جو کوئی ہم نے جو بھی ابھی تک سائنس کی ترقی کی ہے, اور سر یہ آپ جانتے ہیں جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ صرف 5000 کی ریکارڈنگ ہسٹری ہے, اور اس میں سے بھی سر یہ جو ہم نے مارکے مارے ہیں سائنس میں یا ٹیکنالوجی میں, یہ 200-300 ایئرس کے اندر ہے. آپ دیکھ لیں 17ویں صدی سے پیچھے کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور کمپیوٹر پہ اگر آپ آئیں سر, یہ تو 30-40-50 ہزار سال میکسیمم, آپ چاہیں تو 50,000 سال جا سکتے ہیں, جو ابھی میری عمر 45 کے قریب ہے. تو اس سے پہلے ابھی آپ بتائیں جو ہم نے سب کچھ اتنے مارکے مارے ہیں, اس کائنات کی جو ایکچوئل لائف ہے 13.8 بلین ہبل نے دیکھی, جیمز پتہ نہیں کیا دیکھی, کہ اس میں یہ کیا ترقی, یہ ترقی ہے کیا, ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی دعویٰ ہی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہم کس بیس پہ کریں گے. چاہے وہ سائنس ہو, میں مانتا ہوں سائنس واضح ہے, بہت قریب ترین ہے حقیقت, لیکن میں اس کو بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. اب جس طرح یہ میں نے کیا ہے کوانٹم فزکس پہ آرگومنٹ, لیکن میرے اس پہ اپنا کانٹر آرگومنٹ ہے کہ پھر ہم پریڈکشن کیسے کر لیتے ہیں. اگر کوئی چیز ہم پرسیو اس لیے کرتے ہیں کہ آبزرور ہے, لیکن ہم فیوچر بھی کیسے دیکھ لیتے ہیں. سائنس ہمیں فیوچر کا بتا رہی ہے, کل آنے والے ویدرز کا بتا رہی ہے, تو اس کا مطلب دے آر فزیکلی ایگزسٹ. وین ایور دیٹ فیوچر بیکم present, we know it, we are already seeing that thing, so it means the things are available as objective reality. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ چونکہ ہم جو ویسٹرن اپروچ ہے ٹورڈ سائنس وہ یہ ہے کہ ہم نے کلوجر دینا ہے, لیبل لگانا ہے, تو وہ اس لیے ہم نے لیبل لگایا ہے. The truth is کہ it's an open field and it will always remain open. باقی یہ ہے کہ ہم حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں. تو ہاں بس اب اس کو تھوڑا سا مجھے بس یہ, میں آپ کی بات کاٹوں گا نہیں, آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں, میں یہ بس آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اور لوگوں کو بھی ٹیکل کرنا ہے. اب اس کا مجھے اسلام کے لحاظ سے نہیں, میں کہوں گا صرف مذہب کے لحاظ سے نیچرل رکھ کے ہم نے بات کرنی ہے
किसी पे मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की भी दिल शिकनी हो, नहीं, हम वो इस्लाम को सारे नहीं कर मजहब यही सकते। कहते हैं। हाँ, तो अब देखिए आप मेरी ये बताएं कि मैं हमारे पास कोई, किसी के पास भी कोई गायबी आवाज आती है, कोई गायबी मखलूक आती है, कुछ भी होता है, सुपर नेचुरल इवेंट होता है, और वो कहता है कि ये खुदा की तरफ से है, उसको हमारी सेंसेस परसेप्शन जो बहुत लिमिटेड है सर, हम खुद इस कायनात के खमीर से पैदा होते हैं, 30 40 50 60 70 साल जीते हैं, उसमें भी कितनी मुश्किलें परेशानियां जीते हैं। हमारी है कि हजरत अली से किसी ने पूछा किस्मत में और कोशिश में क्या फर्क है, आपने कहा अपनी एक टांग उठाओ, एक टांग हम सर उठा सकते हैं, 2 टांगे भी नहीं हम जमीन पे उठा सकते, तो हम तो इतने लिमिटेड हैं। तो इतना लिमिटेड इंसान कैसे कह सकता है खुदा है कि नहीं है? ये दोनों चीजें ही मैं कहता हूँ वेरी कि एक ही पल्ले में रखी जाती हैं। ना खुदा को आप साबित कर सकते हैं, ना आप उसका डिनाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एग्नोस्टिज्म जो है वो सबसे बेहतरीन अप्रोच है। अगर आप इस कायनात को, या कुछ थोड़े बहुत नेचुरल हैं, लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, तो वो सबसे बेहतर है कि हम कभी खुदा को नहीं जान सकते। और ये अल्लाह के बंदों ने, सूफियों ने यही बात की है कि उसकी तारीफ, उसकी अजमत ये है, शान ये है कि उसकी शान बयान ही नहीं हो सकती है। दो, अच्छा मैं आप जो पहले आप बात कर रहे थे मैं उसको मैं कंप्लीट करूं कि आप ये कहते हैं कि साइंस जो है वो इस कायनात की बेहतरीन वजाहत है क्योंकि उसने थ्योरीज रखते हैं, वो चैलेंजेबल होती हैं। जी जो जी आसमानी किताबें हैं वो ऐसा नहीं करते। दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि कुरान ने अपने आप को रिफ्यूट करने का चैलेंज कुरान के अंदर ही उसने दिया हुआ है कि तुम ऐसा करो, ऐसी ऐसी कोई एक सूरत ले आओ, बात खत्म। इतनी सी बात है। कुरान ने प्रिडिक्शंस दे के अपने आप को चैलेंज बार बार किया, अपने आप को चैलेंज दिया। उसकी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं अबू लहब की, कि अबू लहब के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है, ये इसने मुसलमान नहीं होना, जो मर्जी कर ले। तकरीबन 10 साल वो जिंदा रहा इन आयात के नाजल होने के बाद। उसने सिर्फ इतना करना था कि वो अगर एक झूठा सा ही मुसलमान हो जाता ना तो कुरान का दावा गलत साबित हो जाना था, सब लोग इस्लाम छोड़ के चले जाते, बाद में वो भी चला जाता। लेकिन अल्लाह ने अपने एक टेस्ट के तौर पे खुद को प्रेजेंट किया कि ये नहीं होने वाला, तुम देखोगे, और वाकई वही हुआ, वो नहीं हुआ। और कितनी ऐसी मिसालें हैं जो हदीस में हमें मिलती हैं कि ये हाँ, लेकिन सर लोग ये जो हमें हैं दूसरे अरबी। दूसरे सिविलाइजेशंस में भी मिलती हैं। नोटर डेमस ने देखें कितनी पेश गोई हैं कि इस तरह के और बहुत जी लोग जी, हैं मैं जो मैं फ्यूचर देख लेते मैं हैं, मैं पामिस्ट्री है। जी सर। देख, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए ना, मैं आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनता हूँ ना, तो ओके मुझे ओके भी, ओके। कि फिर सिर्फ बात क्लोजर में नहीं जा सकती, फिर वो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। ऐसे ही हदीस बहुत सी ऐसी हैं जो आज जो मॉडर्न अरब वर्ल्ड हमें नजर आ रहा है कि इसके बारे में प्रिडिक्शन के ये उस जमाने में ये कॉम्प्रिहेंडेबल बात नहीं थी कि इस इलाके के लोग होंगे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ रेस कर लगाई हुई होगी इन्होंने। अगेन इट्स अ टेस्ट कि अगर आप नबी की बात को गलत साबित करते हैं, वो जो पूरी की पूरी दरायत के असूलों पे पूरी उतरती है, जो कि पूरे हदीस साइंस के सारे जितने तयशुदा असूल है उस पर पूरी उतरती है, दीन गलत साबित हो जाता है अगर आप उसे गलत साबित कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शंस के जरिए, इस चैलेंज के जरिए कि ऐसी सूरत बना लो, टेस्ट हमने, कुरान ने भी क्राइटेरियन रखा हुआ है कि आप गलत साबित कर दें। फिर जो आप बात कर रहे हैं कि साइंस के ज़रिए हम इसकी भी बेहतरीन वजाहत कर सकते हैं, देखें लिंग्विस्टिक मोनोपली में होता है कि हम अल्फाज को मिक्स कर दिया करते हैं। डिस्क्रिप्शन और चीज़ होती है, एक्सप्लेनेशन और चीज़ होती है। साइंस के ज़रिए हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इज समथिंग एल्स। जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, जो मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है एथियस्ट साइंटिस्ट से भी और नॉन साइंटिस्ट से भी, इवेंचुअली बात यहीं पे ख़त्म होती है कि लोग, साइंस डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद व्हाई, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद हाउ। तो ये कहना ठीक नहीं है कि साइंस इस कायनात की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। कायनात जो है, इस कायनात को साइंस के जरिए हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक तो ये बात। फिर आप ये कहना कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम क्या जानते हैं। जी जी। एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल अबाउट नोइंग व्हाट वी नो। अगर आपका क्राइटेरियन ये है कि हम ये नहीं जान सकते कि अल्लाह ताला है या नहीं है, वेल फिर एग्नोस्टिसिज्म भी उतनी ही डिफिकल्ट पोजीशन हो जाती है, क्योंकि जिस लिमिटेशन की वजह से आप ये नहीं जान सकते कि खुदा है या नहीं है, उसी लिमिटेशन की वजह से आप एग्नोस्टिक भी नहीं हो सकते, इसलिए कि यू हैव टू टेक अ पोजीशन, एंड इफ यू डोंट नो देन यू कैन नॉट टेक दैट पोजीशन व्हिच इज योर आर्गुमेंट हियर। तो अगेन हम वही कैच 22 सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो उस लैक ऑफ नॉलेज की बेस पे हम एक पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। सो देन द क्वेश्चन इज कि सारी बात के बाद व्हाट आर वी लेफ्ट विद, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज कि हम शुरू करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इस कायनात का कोई खालिक हो। आंसर सीम्स यस। एग्नोसिस बहुत से होते हैं, इवन डॉकिंस ने भी अपने आप को कह दिया कि मैं भी अपना एग्नोस्टिक हूँ,
यहाँ तक उसने भी बात कह दी थी। हाँ, इस पे पहले हालांकि वो एथिस्ट था, लेकिन वो उसने फिर अपने आप पे लड़ा तो इस पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आमतौर पे प्रॉब्लम ये होता है कि फिर इतने सारे जो खुदा की इंटरप्रिटेशंस हैं उनमें से हम अल्लाह को ही क्यों खुदा माने। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, मैंने अपनी एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्लाह को अल्लाह होने के लिए कुछ नेसेसरी कुछ कंडीशंस हैं, फीचर्स ऐसे हैं जो उसको ज़रूरी हैं उसके अल्लाह होने के लिए, जिनमें से उसका ओमनिशेंट होना ज़रूरी है, ओमनिपोटेंट होना ज़रूरी है, अमंग सम अदर थिंग्स, कि हर चीज़ पे कादर हो, उसको हर चीज़ का इल्म हो। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, आप सबको वन बाय वन टेस्ट करके, और ये सारे मज़ाहिब मानते हैं, आप वन बाय वन सबको टेस्ट करके देख लें, और मैंने देखा हुआ है सारे के सारे 4000 को तो नहीं, लेकिन बहुत सौ को। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो कि अल्लाह के ओमनिशेंट होने और ओमनिपोटेंट होने को ना सिर्फ वो प्रेजेंट करता है थियोरेटिकली, बल्कि प्रैक्टिकली भी आप इस्लाम में आपको मिलेगा कि अल्लाह ताला ओमनिशेंट भी है, ओमनिपोटेंट भी है। किसी भी और मज़हब में आप चले जाएं, आपको ये तसव्वुर तो मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिटेशन आपको उस मज़हब के अंदर ही मिल जाएगी। मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ कोट कर देता हूँ। अगर हम नॉर्स मैथोलॉजी को देखें तो ओडिन का दरख्त से गिरकर खुदा बन जाना, ये ओमनिपोटेंट खुदा की दलील नहीं हो सकती कि दरख्त से गिरा खुदा बन गया। दैट डजंट सीम लाइक अ गॉड। ईसाईयत में आप देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक खुदा का अपने बेटे की सूरत में दुनिया में आ जाना, तो क्या इससे फिर वो ओमनिशेंट रहता है? क्या वो हर जगह पे मौजूद रहता है? क्या वो ओमनी प्रेजेंट, सॉरी, क्या वो हर जगह पे ओमनी प्रेजेंट है? द आंसर हैज टू बी नो। इसलिए कि अगर वो एक ज़ात के अंदर, एक जिस्म के अंदर महदूद हो गया तो फिर वो हर जगह पे तो नहीं है ना। यू कुड से कि अगर वो हर जगह पे है इसलिए कि वो उस वक्त ड्यूअलिटी में है, कि वो बहसीत खुदा हर जगह पे मौजूद है और बहसीत अपने बेटे के सॉरी हर जगह पे मौजूद है और अब बहसीत अपने बेटे के वो एक जगह पे मौजूद है, लेकिन चूंकि वो उसका बरह रास्त कनेक्शन जो है वो दूसरे वर्जन के साथ भी है, देयरफॉर उसका एक जगह पे होना इज टू से कि वो हर जगह पे मौजूद है। ओके, इफ यू टेक दिस आर्गुमेंट देन द प्रॉब्लम इज कि जब उस खुदा के बेटे को कत्ल किया गया तो वो जब एक जगह पे मौजूद होने के साथ हर जगह पे मौजूद था, देन इट नेसेसरली फॉलोज कि अगर उसको एक जगह पे कत्ल किया तो वो हर जगह पे मर गया, बिकॉज दैट इज योर आर्गुमेंट, राइट? नॉट योर Yeah, many people have. सो अगेन इट जो उसका ओमनी प्रेजेंट का है वो खत्म हो जाता है। तो इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, इसलिए कि इसमें सिर्फ थियोरेटिकली इन आइडियाज को नहीं समझा जाता, बल्कि प्रैक्टिकली आपको कोई लिमिटेशन ऐसी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी ऐसी लिमिटेशन जो अल्लाह ताला को बाउंड करती हो किसी एक जगह पे। सिंपल मोस्ट डेफिनेशन अल्लाह ताला की जो आपको सूरह इखलास में मिलती है, नो अदर रिलीजन कैन इवन कम क्लोज टू इट, एंड दैट इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड इट। उसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। जी जी, हाँ ठीक है, ये तो रिलीजन की तो एक वजाहत हो गई, लेकिन वो जो मैंने परसेप्शन के लिहाज से बात की थी, अगर उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे। वो तो मैंने मान लिया कि साइंस भी नहीं परसीव कर सकती असल रियलिटी क्या है, मैंने तो वही फिर अर्ज जो किया है, मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं ना इस्लाम की, वो रिलीजन के तौर पे नहीं रखी हैं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इस्लाम को इसलिए माने कि अल्लाह ने कहा है। मैं आपके सामने एक लॉजिकल केस आपके सामने मैंने केस प्रेजेंट किया है कि हम पहला कदम हमारा जो है वो है कि क्या इस कायनात का कोई खालिक है या नहीं है, एंड वी आर ओके विद इट कि यस खालिक तो है। सेकंड पार्ट इज़ कि वो खालिक अल्लाह ही क्यों है, तो फिर उसके बाद हम ये जब लॉजिकल डिवाइस को यूज़ करते हैं कि अल्लाह को अल्लाह होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको किस मज़हब में मिलती हैं। तो मैं आपके सामने एक लॉजिकल आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अल्लाह को अल्लाह इसलिए मान ले कि आपको अल्लाह कह रहा है। सो इट्स नॉट अ रिलीजियस आर्गुमेंट, इट्स नॉट इवन अ थियोलॉजिकल आर्गुमेंट। रिलीजन और थियोलॉजी भी दो अलग-अलग चीजें होती हैं। इट्स अ लॉजिकल आर्गुमेंट। मैं आपके पहले आर्गुमेंट पे कर सकता हूँ क्वेश्चन? जी जी श्योर। तो पहले आर्गुमेंट आप कैसे कह सकते हैं कि इस कायनात का खुदा है? क्या उसके पास आपकी सबसे प्रोफाउंड जो बेस है वो कौन सी है जिस पे आप ये कहते हैं कि इस कायनात का खुदा है? कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है कि क्या है? कॉज एंड इफेक्ट इटसेल्फ इज अ ग्रेट आर्गुमेंट, लेकिन मैं फाइन ट्यूनिंग से शुरू करना चाहता हूँ। किस चीज को? फाइन ट्यूनिंग। अच्छा, फाइन ट्यूनिंग है। तो क्या ये यूनिवर्स नहीं कर सकती फाइन ट्यूनिंग? नहीं। उसके लिए पर्सनल गॉड क्यों चाहिए? मुझे देखें सुपरनैचुरल पर्सनल गॉड तो पावर सेकंड के चीज है, होने आपने में कहा तो ना नहीं पहली पे समझ करेंगे। जी जी, कदकलामी की माजरत। पर्सनल गॉड तो सेकंड आर्गुमेंट है कि खुदा ही क्यों है। हम तो हाँ, पहले आर्गुमेंट में तो हम अल्लाह ताला का जिक्र ही नहीं करते या उस खुदा का जिक्र ही नहीं करते जो आपकी दुआएं कबूल करता है। हम तो सिर्फ द क्रिएटर की बात करते हैं।
लेकिन ट्यून में भी देखें सर, तो मैं जो समझता हूँ, अब मैं तो अपनी बात ही कर रहा हूँ, फिर हम आगे चले जाएंगे। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, पहली मेरी आपसे मुलाकात है। तो फाइन ट्यून देखें, ये फाइन ट्यून इसलिए नहीं है कि हमने होना था, मैं समझता हूँ कि फाइन ट्यून थी इसलिए हम हुए हैं। तो Why do you think? कुछ ना कुछ तो सर होना ही था, देखिए मायने तो Why is it होने ही थे। necessary कि कुछ ना कुछ होना था? क्यों क्यों ये नहीं, क्यों जरूरी? सर, क्या नथिंगनेस का मुझे बताएं, क्या नथिंगनेस क्या हो सकती है? देयर इज नो नथिंगनेस, ये कॉन्सेप्ट ही है। नथिंगनेस क्या है? आप मुझे अपने परसेप्शन में ही, हम इंसान की परसेप्शन में ही बात कर रहे हैं ना, All right, इंसान here के is the thing. माइंड में, उसमें करके देख के बताएं कि नथिंगनेस क्या हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो सर होना ही था। और तो देखें, अगर ये जो कोई फाइन ट्यून की आप बात कर रहे हैं, ये भी बिलियंस ऑफ ईयर इसके पीछे सर पड़े हैं, अरबों खरबों साल की हिस्ट्री पड़ी है। ये कोई 1 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन में तो ऐसी ट्यून हुई भी नहीं है। किसी देखें, ने ये सबसे दावा तो पहले नहीं किया। शुरू हुआ, फिर एटम बने, फिर सितारे बने, फिर उसमें हमारे जिस्म का कार्बन बना, फिर वो सुपरनोवा हुआ, फिर वो ब्लास्ट हुए, फिर वो सारा मटेरियल सर इस कायनात में फैला। तो हम इस कायनात के बाशूर जर्रे हैं, आई एग्री, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि ये एक दिन में बन गए हैं सर, इसके पीछे किसी 14 ने ये बिलियन दावा ईयर नहीं की किया। हिस्ट्री है, एवोल्यूशन पड़ा है। और किसी ने कोई 14.5, या किसी ने कोई दावा नहीं किया कि एक दिन में बना है, और उसका हमारे आर्गुमेंट से कोई ताल्लुक भी नहीं है। द क्वेश्चन इज कि जितने भी आपने तरतीब बताई है, क्या ये आपको ऑटोमेटिकली या एक्सीडेंटल लगती है, या आपको लगती है कि इट लुक्स लाइक इट्स क्रिएटेड? it is created, but तो ये in हमारा a पहला। sense that there are billions of possibilities, that universe can take any other shape, but it take that shape. So there was a Which billions shape? of possibilities, that which Sorry, you are which shape? saying that Okay, so fine tuning, so good that question. Earth just win the सर lottery मुझे out of एक billions सेकंड of देंगे? chances. सर काइंडली आप 1 मिनट रुकिएगा और मुझे एक जवाब सेकंड देने देंगे। देंगे? आपका क्वेश्चन आ गया। देखें, Okay, sir. मेरी एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अगर आप ये बात मानते हैं, और मैं भी मानता हूं कि इट कुड हैव टेकन बिलियंस ऑफ शेप्स, Yes, but it yes. didn't take billions of shapes. It took that precise shape that accommodates our existence. And you think it's just a chance? No, I agree. There is no chance that this universe is by chance. I agree. I तो strongly हमारा agree. पहला जो है वो आर्गुमेंट हमारा सेटल हो जाता है कि क्रिएटर है। Creator, in that sense, I am not, but in that sense, that there is a power. I am agree, totally agree, blindly agree. I cannot deny the existence of that power. That is Then we there, can but move on it to the we second can, part. yeah, okay, Then we can move on to the second part, right? कि yes. फिर वो जो पावर है वो अल्लाह ही क्यों है? हाँ, वो फिर वो इस तरह की क्यों है, और वो अल्लाह ही क्यों है, हाँ, और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, हम कैसे कह सकेंगे? ये जो क्रिएटर है जिस पे भी हमने एग्री किया है, वुड यू हाँ, एग्री कि नेसेसरी है कि इतने बड़े अपैरेटस को चलाने के लिए उसके पास हर चीज का इल्म हो, हर फिजिकल लॉ उसके इल्म में हो, हाँ, हर मैं, फिजिकल लॉ की हर इम्प्लीकेशन उसके पास हाँ, हो? जी, तो वो क्रिएटर को मैं इस शक्ल में मानता हूँ, और दुनिया के ग्रेटेस्ट माइंड जो है वो इस शक्ल में मानते हैं कि देयर इज अ अनसीन पावर। आपने, मैं पहले आपके डिस्कशन सुन रहा था, मुझे अच्छी लगी वो बात, आपने उनको एंजल्स कह दिया, जो फिजिकल लॉज है। हाँ, आप उस पे आ जाते हैं, आप उसका सॉरी, मैंने जवाब दे नहीं चुके हैं। कहा। मैंने कहा ये एक थ्योरी है, एंड नहीं नहीं, आई आपने कहा, सपोर्टिंग इट। लेकिन आपने उनको एंजल से इंटरप्रिटेट किया, तो वो क्रीप तो नहीं मुझे लगी, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। फिजिकल लॉज यहाँ पे हैं, हमने उनको सिर्फ डिकोड किया है। ये जो आप कहाँ बैठे हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ सर, ये बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ये आप बताएं, ये क्या, ये जादू नहीं है? ये कवानीन कहाँ है? इस कायनात के अंदर ही पड़े हुए थे, जिसको यहाँ पे नहीं हमने समझ वो उनको जादू डिकोड कहेगा, लेकिन किया। आप नहीं कहेंगे ट्रू। आई एग्री विद यू ऑन दिस। हाँ जी, आई डू एग्री विद यू। सो अगर ये हमारा जो पहला आर्गुमेंट है ये सेटल हो जाता है कि फिर एक क्रिएटर है, तो फिर उस क्रिएटर को क्रिएटर होने के लिए ये नेसेसरी है कि वो ओमनिशेंट हो, सब पता हो उसको, ओमनिपोटेंट हो, वो हर चीज पे कादर हो। एग्री है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो जानने का जो जरिया है वो जो दुनिया में मज़ाहिब हैं वही हैं, वही हमें बताते हैं ऐसा क्रिएटर है। हमने उस पर इतफाक कर लिया कि एक क्रिएटर है। फिर कौन सा ऐसा मजहब है जो आपको ये बताता है कि जो अल्लाह ताला है वो नॉट जस्ट एज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट इन रियलिटी वो वाकई ही ओमनिपोटेंट है, ओमनिशेंट है, ओमनीप्रेजेंट है? ठीक ठीक आप कह रहे हैं, ये चीजें भी बिल्कुल ठीक है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी है, जो एक मैटर है वो यहाँ होता है, आप उसको कायनात के दूसरे सिरे में जाके रख दें, उसका आपस में लिंक होगा। और ये पूरी कायनात सर, जो हमें स्पेस नजर आती है, देयर इज नो स्पेस, देयर इज अ वेब, देयर इज अ वेब ऑफ एनर्जी।
on which everything is put it there like a sheet. So everything is connected. ये पूरी कायनात और इसके अंदर जो कुछ है ये वेब है, ये एक शीट है, और शीट आप Absolutely. देखें बैठ की होती है तो वो हर चीज उसमें अटैच है, वो इट डज नॉट डिस्टेंस डज नॉट मेक। लेकिन सर जब हम फिर पर्सनल चीज़ों पे आते हैं, हम मिजरी पे आते हैं, हम सफरिंग पे आते हैं, फिर मुझे आके प्रॉब्लम होती है। आप ये कायनात की कोई ताकत है, कोई क्रिएटर है, मायने बहुत गहरे हैं सर, इतने गहरे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को देखूँ, मैं इस कायनात को देखूँ, मैं पहाड़ों को देखूँ, दरिया को देखूँ, समुद्रों को देखूँ, हमारे यहाँ पे सर स्क्विल होती हैं, उसको मैं बैठ के देखता रहता हूँ, मैं एनिमल से इतना कुछ सीखता हूँ, मैं ये दरख्तों से बातें करता हूँ, मैं सितारों से बातें करता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे उसके होने की शवाहिद दे रही हैं, इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन फिर जब हम ये देखते हैं कि काफ़िरों के बारे में काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो जहन्नमी हैं, उनको जहाँ मिले उनको काटो, तो इन चीज़ों से मुझे फिर आती है। मैं आपकी वो मुतशाबिहात वाली बात भी सुन रहा था, तो यहाँ पे आके सर मुझे प्रॉब्लम होती है कि अगर Sure. किसी शख्स को नहीं समझ आ रही, तो आप उस पे अच्छा, सर कैसे कह सकते हैं जी, हम बिल्कुल। एक बंदा अपने साथ सिंसियर है, वो आपको खोजना चाहता है, वो आपको ढूँढना चाहता है, लॉजिक की बेस पे आप खुद कहते हैं कि इस कायनात में निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए, तो वो अपनी अकल ही इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी अकल को ही एक ज़रिया, एक औज़ार लेके आया है इस कायनात की पर्दाकुशाई के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इसमें हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि देखिए, हम जब कोई ऐसा बड़ा क्लेम करते हैं तो फिर आई थिंक ज़रूरी है कि हम उसको एड्रेस करके आगे बढ़ें, अदरवाइज़ फिर वो बहुत से क्लेम्स के अंदर ना वो गुम जाता है और बाद में फिर वो मेरे लिए भी मुश्किल बनेगी कि हुँ, हुँ, फलाँ जगह पे ये बात हुई थी, फिर आपने भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, व्हिच इम्प्लाइज़ कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके। जैसे अभी आपने कहा कि काफ़िरों को काटो और इस तरह से करो। मैं लॉ मैंने पढ़ाया, एलएलबी मैंने यूके से ही किया, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में ही मैंने लॉ पढ़ाया भी है। हुँ, हुँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी बड़ी अहमियत रखती हैं कि जो लॉ होता है और जो जो रेगुलेशन और उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है उनका बाहमी ताल्लुक क्या है। मिसाल के तौर पे यूके में एक लॉ है सेल्फ डिफेंस का कि यू कैन यूज़ रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट फोर्स टू डिफेंड योरसेल्फ, राइट, टू डिफेंड योर या फैमिली, दिस नंबर ऑफ अदर थिंग्स उसमें लिखी हुई हैं। अगर मैं सारा हिस्सा काट दूँ और ये कहूँ कि यू कैन यूज़ फोर्स और इस बेस पे मैं कहना शुरू कर दूँ कि देखें यूके वाले कितने ज़ालिम बंदे हैं, वहाँ पे तो हर आदमी को इजाज़त है। ऐसे यूएसए में जो हैं वो लॉज हैं फायर आर्म्स के कि अगर उसको हम कॉन्टेक्स्ट हटा दें, सर्टन वर्डिंग्स बीच में से हटा दें, तो उसके बाद वो लगेगा यही कि वो तो कैसे वहशी जानवर लोग हैं कि सिर्फ वो मारना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जी, जी। दैट बी अ प्रॉब्लम, राइट? तो हम यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम हरकत करते हैं हम लोग कुरान के साथ कि उसका सियाको सबाक हटा के एक आयत को जनरलाइज कर देते हैं। अब ये जो आपने बात कही ये सूरह तौबा में भी हैं, सूरह बकरा में भी हैं, लेकिन बड़े स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ रूल ऑफ एंगेजमेंट आपको क्या इससे ज़्यादा शरीफ कहीं मिलेंगे? मैं आपको समरी बता देता हूँ सूरह तौबा के इब्तदाई हिस्से की कि इन लोगों से बार बार मुआहदे किए जा चुके हैं, ये बार बार तोड़ रहे हैं, जहाँ तुम्हें अकेला देखते हैं तुम्हें जलील करते हैं, तुम्हें नुकसान देते हैं। अब इनको 4 महीने दो कि ये गौर व फिक्र करें कि अपनी हरकतें वो चेंज करें या इलाका छोड़ के जाएं या फिर जंग के लिए तैयार हों। फिर जहाँ तुम्हें ये मिलते हैं इनको पकड़ो, इनको मारो। लेकिन तुम में से अगर कोई ऐसा इनमें से मिल जाता है जो तुमसे लड़ता भी नहीं है और वो तुम्हारे दीन पे आता भी नहीं है, ये लेकिन ये कहता है कि हाँ मैं तुमसे अब लड़ूंगा नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, तो इज्जत के साथ उसको उसके लोगों में छोड़ के आओ। डू यू थिंक देयर कैन बी एनीथिंग बेटर देन दैट? या सो इट कंपनसेट एट टू मच लेवल, बट अगेन सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 4 महीने के बाद भी किसी शख्स को नहीं समझ आ रही, वो अपने साथ सिंसियर है, फिर क्या करें? इशू ही नहीं है, जो मुसलमान नहीं हो रहा कोई इशू नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप जबरदस्ती मुसलमान करें। बात ही उन लोगों की हो रही है कि जो आपके साथ अग्रीमेंट करते हैं, पीस नेगोशिएशंस करते हैं कि अब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहें, और उसके बाद जहां मुसलमानों को कमजोर देखते हैं, अकेला देखते हैं, उनके काफिले लूटते हैं, उनकी औरतों बच्चों की इज्जत का नुकसान करते हैं, उनका माल लूटते हैं, फिर उनके साथ सुलह होती है, फिर वो कहते हैं कि आइंदा नहीं करेंगे, फिर वो करते हैं, फिर करते हैं, और फाइनली फिर अल्लाह ताला कहता है इनफ इज इनफ। 4 महीने लोगों को दो,
یہ ریفلیکٹ کریں کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. 4 مہینے کے بعد اگر یہ پھر بھی نہیں سنبھلتے, پھر بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں, تو پھر ان کو پکڑو, ان کو مارو جہاں ملتے ہیں. لیکن جو تم ان میں سے جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ تمہارے جیسا بھائی ہے. جو مسلمان نہیں ہوتا اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تم سے لڑے گا نہیں, عزت کے ساتھ اسے اس کے لوگوں میں چھوڑ کے آؤ, یعنی کہ اسے زبردستی مسلمان بھی نہیں کرنا ہے, صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے اگریمنٹ کو آنر کریں. جو نہیں کرتا اس کے ساتھ تم کیا کرو گے, اور لڑائی کرو گے نا. ادروائز کیسے چلے گا کہ وہ آ کے تمہاری عورتوں کی عزتوں پہ بھی ہاتھ ڈالتے رہیں, تمہارے بچوں کو مارتے رہیں, تمہارے قافلوں کو لوٹتے رہیں, اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو, جبکہ ایگریمنٹ دونوں نے سائن کیا ہوا ہے. ٹریٹی کی وائلیشن ایک طرف سے ہو رہی ہے. تو اگر ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو پکڑو, ان کو مارو, وچ از کامن سینس, تو اس کو ایک آدمی اگر جنرلائز کر کے, میرا کوشچن ہے کہ اس کو ایک آدمی جنرلائز کر کے اگر پورے کے پورے اسلام کا مزاج بنا دیتا ہے کہ کافروں کے لیے کہ جن کو جہاں مرضی پکڑو ان کو مارو, تو بددیانتی نہیں ہے یہ؟ اور اگر یہ بددیانتی ہے تو وہ کون سا ایسا سچ ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ کر رہا ہے؟ میں نے اس پہ پڑھا تھا, مجھے تو اس کی اتنی ڈیٹیل یہ نہیں ملی تھی کہ اس طرح اس کی ساری بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس کے لیے میں بالکل معذرت چاہوں گا.